Welcome to SUI online chemistry classes for class 12 English medium. In previous video, I did the whole chemical properties and physical properties of and also method of preparation of nitrogen, as well as method of preparation of nitric acid and one industrial process. Now today I am going to start the second industrial process of nitric acid. Okay, nitric acid का जो लैब मेथड था वो क्या था? HNO3, it is nitric acid. The lab method of nitric acid is when potassium nitrate, that is KNO3, react with H2SO4 to form nitric acid and potassium hydrogen sulfate. Nitric acid and potassium hydrogen sulfate is obtained in the form of vapors. After the condensation of these vapors, nitric acid is obtained. Now this is the lab method. Now we move to industrial method. There are two industrial methods. First is Reclaimed-Ide method, and next is Ostwald method. Reclaimed-Ide method is also known as arc method because lot of energy required in this method. And the energy is 3000 degrees Celsius temperature. And Ostwald method is better method as compared to Reclaimed-Ide method. Okay, in Reclaimed-Ide method, first is nitrogen gas react with O2 to form NO, nitrogen oxide, and this reaction takes temperature 3000 degrees Celsius in arc furnace. Okay, this NO react with further oxygen to give NO2. It means NO is further oxidized to form nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide, that is NO2, react with water to form HNO3, and NO is reformed. For balancing this reaction, we take here 3 molecules of NO2. Okay, these are the principal reactions of Reclaimed-Ide method. Now I am going to start Ostwald method. ये आप प्रीवियस वीडियो में इसको पूरा विथ डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, रिवाइज करवा दिया मैंने आज आपका। Reclaimed-Ide मेथड क्या है? Reclaimed-Ide मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को हम फ्री करते हैं फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ दिस एयर इज सब्जेक्टेड टू आर्क फर्नेस. In arc furnace or arc chamber, the temperature maintained at 3000 degrees Celsius. At this temperature, N2 and O2 react to form nitrogen oxide. This nitrogen oxide passes to oxidizing chamber. In oxidizing chamber, NO is further oxidized into NO2. When NO2 react with water, it gives HNO3 and NO is reformed for the further reaction. Okay, now we move today in Ostwald process. Okay, I am going to start Ostwald process. This is the next second method for the industrial process for the preparation of nitric acid. Ostwald method. Ostwald's method. In Ostwald method, ammonia is oxidized, which means ammonia reacts with oxygen to form nitrogen oxide and water. Remember, this reaction is exothermic in nature, and this reaction takes in the presence of platinum catalyst and 800 degrees Celsius temperature. Okay, this is the main reaction of Ostwald process. First of all, ammonia react with oxygen to form nitrogen oxide. Now next reaction, remember this reaction is take place at 800 degrees Celsius temperature, and PT act as a catalyst, and this reaction is exothermic
in nature. जो टेम्परेचर 800 हमने एक बार दिया, फिर वो जो चैम्बर होगा जिसपे ये रिएक्शन प्लेस होगी उसमें जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो जो रिएक्शन से टेम्परेचर हीट निकल रही है वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। इसी रीज़न से ओसवाल्ड मेथड इज़ बेटर मेथड एज कम्पेयर टू ब्रिकलैंड मेथड। उसमें हमको 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतनी एनर्जी ऑफ अमाउंट हमको देना पड़ रहा था, और इसमें एनर्जी भी कम है, और जितना एनर्जी एक बार डालने के बाद वो अपने रिएक्शन इटसेल्फ मेंटेन कर रहा है बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, NO is further oxidized to form NO2। NO जो है फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें हो गया, NO2 में हो गया, एंड दैट NO2 react with water to form nitric acid as well as nitrous acid। नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड दोनों जो है फॉर्म होते हैं when NO2 react with water। HNO3 यही पड़ा रहेगा। Why? HNO2 is decomposes because nitrous acid is unstable acid। After the dissociation of NO2, it gives nitric acid, also give NO and water। To balance this reaction, we take here 3 molecule of nitrous acid and here we take 2N। Now this is the complete reaction of Ostwald method. First of all, ammonia and oxygen react in the presence of platinum catalyst at 800 degrees Celsius temperature to give ammonia is oxidizes into nitrogen oxide. This reaction is exothermic in nature. Then NO is further oxidized to form NO2. That NO2 react with water to give mixture of nitric acid as well as nitrous acid। Nitrous acid is unstable acid. After the decomposition of nitrous acid, it gives nitric acid, NO and water। NO is reused for in this process। Okay, अब इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं। The mixture of ammonia and oxygen, the mixture of ammonia and oxygen is subjected to catalytic chamber। In catalytic chamber, PET rods are present which act as a catalyst and also give 800 degrees Celsius temperature। The temperature of this chamber is about 800 degrees Celsius। Okay, this is known as catalytic chamber। Now in this chamber, NH3 and O2 react to form NO and water molecule, and this NO is passes to oxidation tower। It is oxidizing or oxidation tower। In this tower, NO, यहाँ से हम लोगों ने क्या पास किया है, NO। In this tower, NO is oxidizes to give NO2, and this NO2 is moved to absorption tower। It is water, and here we move to NO2। When this NO2 is mixed with water, it gives nitric acid and nitrous acid। Okay, nitric acid is collected here, it is nitric acid, and as well as nitrous acid is formed after the decomposition of nitrous acid, it is mixed with this mixture। Okay, this chamber is known as absorption tower। This is all about the Birkeland method and Ostwald method is finished. Now in next video, I will discuss the chemical properties of nitric acid। I hope you understand it। Thank you। Students, in our today's video lecture, we would solve the numerical problem of the topic structure of atom। These are the problems which we are going to solve in today's video lecture। The minimum energy required to excite the atom of allyl
solve this numerical problem, first of all, we have the concept that what is the excitation means here. I have told you excitation means when the atom of any element absorb the energy, sufficient amount of energy, and goes from its ground state to first energy state, first higher energy level. That is called excitation. That is called first excitation. I am making a energy level diagram to understand the concept of this. This is the ground state. This is the GMT ground state. This is the ground state. Normal state, ground state, n is equal to 1, n is equal to 1, and this is the n is equal to 2. This is the higher energy level, and so on, n equal to 3, n equal to 4. So this is suppose n equal to 3, n equal to 4, and so on, n equal to 20. Now, if the atoms, we know the atoms of the element generally in the ground state and normal state. When the atoms absorb the energy, then it jumps from one state to upper higher energy level. Suppose it goes from here to here, it makes transition from n equal to 1 to n equal to 2. मतलब एटम ने एनर्जी को absorb किया और वो 1 से कहाँ पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया. उसने इतनी एनर्जी सफिशिएंट हो गई उसके पास कि वो इस एनर्जी स्टेट पर क्या कर सकता है, लाइक कर सकता है. तो वो यहाँ पर पहुंच गया. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है वो 1 से 3 ज्यादा एनर्जी absorb कर ली उसने, उसके बाद ज्यादा एनर्जी एक्सटर्नली मिल गई, तो 1 से 3 भी ट्रांजिशन हो सकता है, 1 से 4 पर भी जा सकता है. ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनिमम. ये वर्ड देखिए क्या बोल रहा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. तो जरा बताइए, ये भी एक्साइटेशन है, 1 से 2 भी एक्साइट हो गया एटम, 1 से 3 पर भी गया तब भी एक्साइट हम लोग बोलते हैं, 2 से 3 पे भी जाता है तब भी हम लोग बोलते हैं. ठीक है, 1 से 4 पे जाता है तब भी कहते हैं एक्साइट हो गया. तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी किस ट्रांजिशन में है, तो मिनिमम एनर्जी की अगर आप देखें तो दिस इज फॉर 1 to 2. मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन आपका क्या है, 1 से 2 है, 1 से आपका 3 नहीं होगा, 1 से 4 नहीं होगा. तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन फॉर द लिथियम. और लिथियम के लिए आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है, जेड की जो वैल्यू होती है लिथियम के लिए क्या होती है, 3 होती है. तो हम लोगों को एनर्जी लेवल यहाँ पे, ये आपको पता है एनर्जी यहाँ पे E2, यहाँ पे मैंने लिखा दिया E1. तो हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, यानी E2 माइनस E1 हम लोगों को फाइंड करना है. यहाँ का डिफरेंस फाइंड करना है E2 माइनस E1. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो E2 माइनस E1, तो E का फॉर्मूला आपका क्या होता है, En माइनस जेड स्क्वायर RHC बाय n. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉन which is in nth orbital number. Energy of the electron in the nth orbital number for the element whose atomic number is z. ये फॉर्मूला आपका होता है, हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं और मेथड कर चुके हैं. तो हमें E1 चाहिए, 1 पुट कर दिए, z की वैल्यू आपको 3 पता है, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9. RHC की वैल्यू भी हम लोगों को ऑलरेडी पता है 13.6, ये हो गया. और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका आ गया इतना इलेक्ट्रॉन E1 की वैल्यू पर. ठीक है, E2 आप निकाल लीजिए. E2 आपका क्या होगा, E2 यहाँ पर n की 2 हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी. तो ये आपका नीचे 4 आ जाएगा, यानी माइनस n ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया ये 4. एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट E2 माइनस E1, वी हैव टू फाइंड E2 माइनस E1. तो E2 माइनस E1 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर. E2 माइनस E1, so delta E difference E2 माइनस E1. E2 आपका ये है माइनस का 9 into 13.6 अपॉन 4 into E1 आपका ये माइनस में चलेगा प्लस 9 ब्रैकेट में 13.6. ठीक है, अपॉन में आपका होगा एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए. तो ये वैल्यू 4 माइनस 1 3 यानी 9 into 13.6 into 3 by 4. ये आपका आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको सॉल्व करके 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा, ये आपका हो गया. 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 9 से 30.6 into 3
6 से मल्टी 18 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्साइटेशन, मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी फॉर द Li++ विल बी 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे इज दिस। तो ये वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ आपका 5000 एंगस्ट्रॉम एंड व्हाट इज दिस वेव नंबर। हमको क्या फाइंड करना है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो वेव नंबर आपका फाइंड करना है, दैट इज 1/λ। 1/λ की वैल्यू आपकी 5000 एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में कन्वर्ट करिए 10⁻⁻10। ये गलती मत किया करिए, एंगस्ट्रॉम को मीटर में जरूर कन्वर्ट करिए यहाँ पर। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, प्लस में ये आपका 5 × 10⁻3। ठीक है, ये हो गया 3 से आपका कैंसिल 7 बचे। 7 को आप लिखेंगे 10 × 10⁻6 अपॉन 5 से कैंसिल 2। ये आपका आ गया 2 × 10⁻6। यूनिट क्या होगी? लैम्डा, मीटर है ऊपर के मीटर इनवर्स, तो ये आपकी यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। ये जरूर ध्यान रखिए, 2 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसको देख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सी सीरीज बोला है? ब्रैकेट। किस नंबर की सीरीज होती है? पहली आपकी क्या है? लाइमन। सेकंड क्या है? पावर। थर्ड आपकी क्या है? लाइमन, पावर, पार्शियल। फोर्थ आपकी क्या है? ब्रैकेट। और लास्ट आपकी क्या है? पीफन। तो ये फोर्थ नंबर है, तो n इक्वल टू ये फोर्थ है, तो इसका फार्मूला आपको लैम्डा का पता है क्या होता है? 1/λ इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए z आपका हो जाता है 1, तो r बचता है 1 फार्मूला का 1/n1² - 1/n2²। अब फोर्थ नंबर की यानी सारे ट्रांजिशन कहां पर होंगे? जैसे इसको हम लोग ऐसे समझे 1 2 3 4 5 6 7 as it is infinite, n equal to infinite, n equal to 1 2 3 4 5 6 7 infinite। ठीक है, तो फोर्थ नंबर ये है आपका, फोर्थ एनर्जी है, फोर्थ ये है। सारे ट्रांजिशंस रेडिएशन के इसी पर होने हैं, मतलब पहला जो होगा वो 5 to 4, फिर 6 to 4, 7 to 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैक्सिमम ये वर्ड देखिए, दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मिनिमम वेवलेंथ का बनता है और एक मैक्सिमम वेवलेंथ का बनता है। तो यहां पर जरा देखिए, आपको पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा, ये होता है। यानी अगर एनर्जी ज्यादा है वेवलेंथ कम, और एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा हो। तो जरा देखिए इसमें से किस ट्रांजिशन में, इनमें से किस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे कम रेडिएट होगी? एनर्जी सबसे कम होगी तभी वेवलेंथ आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो जरा देखिए यहां पर इस लास्ट ट्रांजिशन में देखिए, इस ट्रांजिशन में एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट होगी, यहां पर जो एनर्जी रेडिएट होगी सबसे ज्यादा होगी, यानी लास्ट ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे मिनिमम होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन है 5 to 4, इसकी वेवलेंथ जो है सबसे मैक्सिमम होगी, यहां पर एनर्जी का जो रेडिएशन है वो सबसे मिनिमम है। तो यानी कि ये आपका हो गया N1 और ये आपका हो गया N2। ठीक है, तो फिर सॉल्व करते हैं। 1/λ, r की वैल्यू आपको पता है 1.097 into 10⁻⁷, 1/n1। n1 आपका क्या है? 4, 4 स्क्वायर 16 माइनस n2 5 आएगा 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 1/λ इक्वल टू 1.097 into 10⁻⁷, 16 और 25 का एलसीएम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 400, 25 माइनस 16। ठीक है, वन बाई लैम्डा 1.097
10 to the power 7, 25 में आपका 9, 400, 400 आ गया, 2 जीरो से आप इसके काट दीजिए 5, ठीक है, 1 बाई लैम्डा, तो इससे लैम्डा आपका आ जाएगा 4 बाई 1097 into 9 और ये 10 to the power -5, ठीक। अब यहाँ पर मल्टी करिए, 9 into 1097, डिवाइड करिए 4 को, 4 पॉइंट आएंगे तो 1 2 3 जीरो यहाँ पर गए, ये हो गया 987, पॉइंट लगाया आपने, 0 भाग गया, 9 4 जा 9 4 जा 4 भाग जाएगा, 50 लिखिए, 39, 5 जीरो, पॉइंट लगाया आप 1 जीरो बाहर, अभी भी स्मॉलर है 0 पर ही, अब ये कितना हो गया 5 जीरो 8 जीरो, कितनी लाइन जाएगी 5 5, ठीक है, 405 आ गया, इसको सॉल्व करिए, 5 ठीक है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, अब ये कितने टाइम जाएगा 1, तो 0.405 क्या है 0.4051, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लैम्डा आपका आ रहा है 0.4051 और 10 की पावर आता है -5, 10 की पावर आपका क्या है -5, ठीक है। इसको अगर हम लोग उसमें लिखते हैं, तो ये वैल्यू आपकी रहेगी लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 4, तो 9 बनेगा, तो एक पॉइंट पर आप और लगाइए इसमें, तो 1 टाइम रहेगा, तो ये आएगा 9873, तो ये आपका बन गया 7 7 3 10, यहाँ बचा 4 7, यहाँ पे आपका कैरिजेरियस है, कैरिजेरिया 2 पॉइंट अगर 0 रहा तो ये 4 4 देखिए, ये 4 पूरे जो है ये 4 टाइम जा रहा है, ये आपका हो गया 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4 और बनिए, अब 40514 और ये बन जाएगा into 10 की पावर 1 2 3 4 5 -10, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 40514 एंगस्ट्रॉम। So this is the maximum wavelength for the bracket series 40514, ठीक है, and do all the problems in your homework, and if you have any problem WhatsApp me that problem particularly. Thank you students. Good morning class. लास्ट स्टेप पे आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बात की थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था डीबीएमएस में कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग डीबीएमएस का यूज करते हैं। और अगर हम लोग मॉडिफिकेशंस की
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारी एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम लोग डिफरेंट टेबल्स पर जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं उन ऑपरेशंस को करने के बाद हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट क्वेरीज की सहायता से हम लोग बड़ी बड़ी टेबल्स पर अपने डेटा पर वर्क करेंगे और वहाँ से आउटपुट लेंगे यानी रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अभी तक मोर देन 50 लैंग्वेजेस हैं जो एसक्यूएल के तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज हमारी एसक्यूएल है, क्योंकि ये क्या करती है, ये डेटाबेस का मैनेजमेंट करती है, यानी डेटाबेस को समय समय पर अपडेट करना, मॉडिफाई करना, अपेंड करना, उसमें कुछ नया जोड़ना, उसके स्ट्रक्चर में कुछ नए चेंजेस लाना। तो ये सारा वर्क हमारा किसका है, एसक्यूएल का है। आपको पता होगा आरडीबीएमएस जो डिस्कवरी हुई थी, जो डेटा को टेबल के फॉर्म में लाना था, जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सारा वर्क था, वो हमारा डिस्कवरी किसने की थी, ईएफ पॉल ने। तो एसक्यूएल को डेवलप किसने किया, डॉक्टर ईएफ पॉल ने। कहाँ डेवलप किया, सर जोन्स रिसर्च लेबोरेटरी में डेवलप किया इन 1970 में डेवलप किया। और ये बेस वर्जन जो इसका डेवलप किया गया वो किसने किया, आईबीएम ने किया। जो इसका बेस वर्जन था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सभी लोग जानते हैं इसको, सब सारे ही लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इसका एक्सेप्टेंस जो है सारे ही वर्ल्ड वाइड है, पूरे सारे कंट्रीज में। उसके बाद इसमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड एसक्यूएल। क्यों ये एसक्यूएल कहेंगे, बिकॉज स्टेटमेंट्स आर इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके स्टेटमेंट किस फॉर्म में थे, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में थे। इट इज कॉल्ड एसक्यूएल बिकॉज स्टेटमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। वी कैन मेक अ क्वेरी, हम लोग एक क्वेरी कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके हम लोग क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके कौन कौन से वर्जन है। अभी लेटेस्ट वर्जन जो इसका 2016 अभी तक जो यूज किया जा रहा है, उसके बाद अभी इसके नेक्स्ट वर्जन नहीं आए। और जो इसका पहला वर्जन था वो आपका 1979 में यूज हुआ था। तो सबसे पहले इसके जो हम लोग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। जो इसका पहला पार्ट है उसका नाम है SQLDDL, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमांड्स आर प्रेजेंट टू डिजाइन द डेटाबेस स्कीमा। कमांड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं टू डिजाइन द डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन करने के लिए। डिफाइंस व्यूज डिफाइन करता है, लॉज जो लॉज होते हैं उनको डिफाइन करता है, एंड कंस्ट्रेंट और जो डिफरेंट नियम होते हैं वो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। कंट्रोल ऑन ट्रांजैक्शन, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें दो कमांड होती है, कमिट एक रोल बैक। इन दोनों कमांड्स पे भी ये वर्क करता है। इसके बाद हमारा है एसक्यूएल इंटरैक्टिव डीएमएल, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंटरैक्टिव डीएमएल। डीएमएल मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है, मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेट करना मतलब ऑपरेशन करना, मैनिपुलेट करना मतलब ऑपरेशन करना। कमांड व्हिच ऑपरेट्स ऑन डेटाबेस, ऐसी कमांड्स जो डेटाबेस पर वर्क करती हैं, जैसे अपडेट, डेटाबेस को अपडेट करना। अपडेट करना मतलब जैसे कोई स्टूडेंट 9th क्लास में उसको 10th में लाना, 10th क्लास वाले को फर्स्ट ईयर में लाना, फर्स्ट ईयर वाले को इंटर में लाना। दीज आर द ऑपरेशन इन क्लास। वाई जो 12th में आया उसको क्या करना, डिलीट करना। जो 12th में आया उसको क्या करना, डिलीट करना। When we use insert command, insert का मीन्स है हमारा कि हम अपने टेबल में कोई भी नया डेटा इंसर्ट करें, या हम लोगों को कोई नई फील्ड इंसर्ट करनी होती है तो उसके लिए हम लोग उसके लेआउट पर जाकर, उसके स्ट्रक्चर पे जाके हम लोग एक नई फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अपेंड का मतलब होता है डेटा में चेंजेस लाना। अगर हम डेटा में चेंजेस लाना चाहें तो हम लोग अपेंड कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अपेंड कमांड की सहायता से हम लोग डेटा में चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद हमारा है एम्बेडेड डीएमएल। एम्बेडेड डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इट इज यूज्ड विद सी, C++, COBOL, Pascal, Fortran, PLI। इट यूजेस व्हेन वी क्रिएट सॉफ्टवेयर। इसका मीन्स है एसक्यूएल का प्रयोग हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ भी करते हैं। हम लोग
स्कीमा को डिफाइन करते हैं, डेटाबेस के सब स्कीमा को डिफाइन करते हैं। मींस इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस आर डिजाइंड। इनिशियल डेटाबेस ऑफ स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय SQL DDL, where we can create different fields, where we can create different views of database, where we create different constraints and laws which work on that table. And if we want to create multiple tables and making the relation between multiple tables, then we use RDBMS. After that, the parts of SQL, the second part is SQL Interactive DML, where there are some commands when the database is created. If we want to search any information, if we want to change in the database, then we use different type of commands. The mainly commands which are used in database, that is update, delete, insert and append. If we use update means to update any information in any time. This is work done by the DBA. This work is done by the DBA. Only DBA can update the database. If there is a database which is not used in our data, then we delete that data. After that, if we want to insert some new data, then we use insert command to insert new data. After that, if we want to change in any database, if we want to add some other data to data, then we use append command. After that, the third is embedded DML. Embedded DML means embedded data manipulation language. It is used when we create some software with the help of some programming languages like C, C++, Java, COBOL, Pascal, Fortran. Then we use embedded DML, and for making any software we use backend and frontend of the software. With the help of these languages, SQL help to create new softwares to support the language, that is C, C++, COBOL, Pascal and Fortran. The next thing is DCL, data control language. There are some commands to control the database, means there are some constraints also to access the data. If there are three types of permission: read permission, write permission and execute permission. If administrator give only read permission, then you can read the database with the help of software. You can read because you only access that data, you only read that data. After that, write permission. Write permission means you can edit on data. You can edit on data. This permission given to only DBA, not all the users. So all the users have only read permission, and there are three permissions: read, write, execute, which is given to the DBA who can change on data. So now we understand what is SQL, who developed the SQL language, why we use SQL, how we create database, how we create relational database management system, how the table is normalized with the help of 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. And after that, we understand how we write our query. What is SQL? With the help of SQL, we can write our query in different database, in different tables. And after that, you will understand the SQL commands. In next term, we will discuss about SQL commands which are in the form of group, which are in the form of structure. So now you class understand all the things
With the help of these keywords, we can create our query